السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لائن اور میں ہوں فیصل رحمان آج کے روڈ شو کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلے چند روز خاص کر کے کل کا دن کراچی کے لیے بہت برا تھا۔ آج بھی صورتحال قدرے کوئی مختلف نہیں ہے، لاشوں پہ لاشوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم کراچی میں تو موجود نہیں ہیں لیکن اسلام آباد کی ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جو کراچی کمپنی کہلاتی ہے۔ یہ اسلام آباد کا ایک ایسا مصروف بازار ہے، ایک ایسا بڑا بازار ہے جہاں پر تقریباً ہر رنگ، نسل اور ذات سے تعلق رکھنے والے افراد کاروبار کرتے ہیں، لیکن یہ لڑتے نہیں ہیں آپس میں، یہ متحد ہو کر رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہی آپ تک پیغام پہنچایا جائے، کراچی کے ان لوگوں کے جو اس وقت خون کی ہولی کھیل رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ امن کی راہ کو اپنائیں اور یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں اور دوبارہ سے نارملائز کریں اپنی زندگی کو۔ ناظرین، یہ جو ماہ ہے اگست 2011، یہ اپنی تاریخ کا اس لیے سب سے میں کہوں گا سیاہ مہینہ گزرا ہے جس میں تقریباً کراچی میں 1450 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب تک لوگوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو سر عام گولیاں مار دی جاتی ہیں، گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، کچھ کو تو بسوں میں بیٹھے غریب لوگوں کو تو زندہ جلا دیا جاتا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، دن بدن کراچی کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج تاجر برادری جو وہاں کی ہے اس نے یہ اپیل کی ہے، یہ درخواست کی حکومت سے کہ جناب فوج کا آپریشن یہاں پر جائز بنایا جائے۔ اب فوج کا آپریشن کوئی اتنا آسان ہے نہیں ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی یہ تو ایک الگ آنے والے دن ہی پتہ چلیں گے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کی عام عوام سے یہاں سے بات کرائیں گے، تمام ان لوگوں سے کہ وہ کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کراچی کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، وہ لوگ جو انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہدایت کا پیغام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے اس وقت، کیونکہ ابھی روزہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے یہاں پر، ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جب بات کرائیں تو یہ میسج آپ تک کنوے ہو، یہ پیغام آپ تک کنوے ہو جس میں کہ امن کی بات ہو، پیار کی بات ہو، بھائی چارے کی بات ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں جو عامر سلطان نے کراچی سے تیار کی ہے، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں جب سمندر کنارے روشنیوں اور رنگ و نور میں نہایا ہوا ایک شہر بسا کرتا تھا۔ اس کے وسیع دامن میں ہر قوم، رنگ و نسل اور فرقے کے لوگ سما جاتے تھے۔ شہر میں ہر سو امن و آشتی کا راج تھا۔ یہاں کے دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں، ہر طرف چین کی گنگا بہتی تھی۔ آج اسی کراچی میں ہر طرف آنسو، آہیں، گولیوں کا شور اور فضا میں بارود کی بو پھیلی ہے۔ شہر قائد میں چہکنے والی امن کی سفیر فاختائیں ناپید ہو چکی ہیں اور روشنیوں کے شہر میں اندھیرے کا دیوتا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کراچی میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور گینگ وار سے گزشتہ 2 مہینوں کے دوران سینکڑوں بے گناہ افراد موت کی نیند سلا دیے گئے اور آئے روز درجنوں افراد موت کی دیوی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے ارباب اختیار اتنے ہی بے اختیار ہیں کہ وہ ان مٹھی بھر امن کے دشمنوں پر قابو نہیں پا سکتے؟ آخر کب تک کراچی یوں ہی کرچی کرچی ہوتا رہے گا اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ویلکم بیک ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، حالات آپ کے سامنے۔ آج ہم السلام علیکم جناب، بات کراتے ہیں آپ کی آج کا پروگرام جی ہم کر رہے ہیں کراچی کمپنی سے اور کراچی کے حوالے سے۔ کراچی میں جو کچھ صورتحال ہے اس کے اوپر تو آپ کی ڈیفینیٹلی ایک نظر ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا مشورہ ہوگا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کراچی کی اگر صورتحال کو کنٹرول کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کراچی کے حالات پہ بہت پریشان ہے اور سمجھ نہیں آتی کس کی نظر لگ گئی کراچی کو، اور جہاں تک اس کے حل کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل کوئی سیاسی ہی ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہیں کہ فوج کی ضرورت ہے وہاں پر آپریشن کے لیے، رینجرز، ایف سی اور پولیس کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس بھی فورس کی ضرورت ہے اس وقت اس کو ڈپلوائے کرنا چاہیے وہاں پہ، اور فورس سے زیادہ شاید سیاسی حل اس کا زیادہ مؤثر ہوگا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں گے کہ مثال کے طور پہ اس وقت ہم صورتحال دیکھتے ہیں، ہر ایک بڑی جماعت جس میں اے این پی شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، جو بڑی 3 جماعتیں جو آپس میں رائیولری بھی اور مسئلے مسائل بھی ان کے نظر آتے ہیں، کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کبھی الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرائمریلی پرابلم ان جماعتوں کی ہے، آپس میں ان کی سیاسی جو گٹھ جوڑ ہے، جو دور ہونا ہے اور پھر آپس میں جو بیان بازی ہے، اس کا رزلٹ ہے جو آج کراچی کے حالات ہیں؟ بالکل 100%۔ یہ تینوں سیاسی جماعتیں اصل میں عوام کے جو مسائل ہیں یا عوام کے جو حقوق ہیں ان سے بالکل یہ بہت دور ہو گئی ہیں۔ یہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ سب مل کے وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ خاص ٹرم استعمال کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، یہ غیر مؤثر ہیں اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر سیاسی لوگ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے جناب، آپ خیریت سے ہیں؟
سر آج کا ہمارا پروگرام ہے کراچی کے حوالے سے. کراچی تو ہم نہیں ہیں لیکن ہم کراچی کمپنی میں ضرور موجود ہیں. یہ بتائیے کہ کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہاں پر, جو قتل اور جو ایک کہتے ہیں جی تباہی پھیرنے کی جو سیاست ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, کوئی پیغام دیں گے؟ یہ سارے یہ جو کچھ بھی پھیر رہے ہیں یہاں پر پورے ملک کی تباہی پھیر رہے ہیں. کراچی میں کیا پھیر رہے ہیں, پورے ملک کی پھیر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تو حکمرانوں کو چاہیے, جو حاکم وقت ہے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, ان کا کام ہے. باقی تو جو یہ کراچی میں کر رہے ہیں وہ مسلمان تو پتہ نہیں اب نام ہی, خیر مسلمان کو تو چھوڑے, مسلمان تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. جو انسان بھی وہ ہیں یا نہیں ہے, درندے بھی نہیں کرتے اس طرح, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ جو یہ صرف ایک سیاسی ٹائپ پرابلم ہے یا کچھ گروپوں کی جس میں مختلف مافیا, کوئی کہتا ہے جی بھتہ مافیا ہے کراچی میں, کوئی کہتا ہے جی لینڈ مافیا ہے, کوئی کہتا ہے جی ڈرگز مافیا ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ اسلحے کے جو ٹریڈرز ہیں جو ناجائز اسلحے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں یا کوئی بیرونی ہاتھ, کوئی انڈیا وغیرہ کا چکر, یا باقی کوئی موساد کے سلسلے بھی نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ ہر جگہ انڈیا کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہمیں یہ الزام لگایا جائے بیرونی ہاتھ, رحمان ملک صاحب کہتے ہیں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. اب بیرونی ہاتھ تو سعودی عرب کا تو ہو نہیں سکتا. یہ ہمیں ایک بہت آسان لفظ مل گیا ہے کہ جی بیرونی ہاتھ, انڈیا کا نام لے لیا ہے, اسرائیل کا لے لیا ہے. اچھا, ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ یہ ہم لوگوں میں یہاں مداخلت کرتے پھرے. یہ جو ہم خود اپنی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں اپنی حکومت کا طول دینے کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہماری اپنی کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے, اور یہ جو بھی ہمارے یہ ہے نااہل قسم کے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ان کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں. تو اب سر ہم سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ حکومت کا ایک ایبسولوٹ فیلئر ہے یہ آج جو کراچی کے حالات ہیں. جی میں سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں, ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی کوشچن کرنے کی ضرورت کیا ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ناظرین, پرائمریلی جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ حکومت کا فیلئر ہے, حکومت فیل ہو چکی ہے, کوئی ان کے کنٹرول میں سلسلہ ہے نہیں. اور یہ جو بات کی انصاف نے کہا کہ جی بیرونی ہاتھ کا جہاں تک تعلق ہے, ہمیں ہمارے اپنے مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں, ہم خود یہ حرکتیں کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ہمارے مسئلوں کو زیادہ پروموٹ کریں. لیکن یہ سوال آگے بھی اور بھی لوگوں سے پوچھیں گے, آئیے ہمارے ساتھ. ہاں جناب, ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی یہ ایسی مارکیٹ ہے جو عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں افراد کے لیے یہاں پر ہے. کھانے پینے کے اشیاء آپ دیکھ سکتے ہیں, سبزی, فروٹ. تو یہاں پر یہ بیسیکلی وہ عام عوام ہے. آج آپ کو لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو F6, F7 یا F10 میں لے کر کے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ڈفرنٹ آپ کو کراؤڈ ملنا تھا, ایک ڈفرنٹ, ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں, اندازہ نہیں, کہ اندازہ تو خیر ڈیفینیٹلی ہے, یہ غلط ہوگا کہنا, لیکن وہ فیڈ بیک آپ کو نہیں ملے. کیونکہ کراچی میں زیادہ تر جو لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کا تعلق ڈیفینس یا کلفٹن یا بورڈ بیسن یا اس ایریا سے نہیں ہے. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو عام طبقے سے جن کا تعلق ہے اور اس قسم کے افراد ہیں. لہٰذا میں چاہ رہا تھا کہ آج کا پروگرام ہم انہی عام عوام میں جا کر کے کریں. آئیے میرے ساتھ. جناب السلام علیکم بھائی, کیا کرتے ہو یہاں پر؟ اچھا مچھلی بیچتے ہو, کہاں سے تعلق ہے؟ کراچی سے. کراچی سے ادھر آ کے کام کر رہے ہو. کراچی کے حالات صحیح نہیں ہے؟ نہیں ہے نا جی. کیا سننے کو ملتا ہے؟ تھوڑا آگے آ جاؤ. کیا سننے کو ملتا ہے, کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ ہنگامے ہو رہے جی, گولیاں مار رہے لوگوں کو. یہ کون کر رہا ہے کراچی میں سارا سلسلہ؟ جانتا جی کون کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً اس مہینے میں 1400-1450 بندہ ابھی تک ہلاک کیا جا چکا ہے. ایسے مر گیا جی, 55 بندے کل مار دیے, پرسوں سے 2 دن ہو گئے. تو یہ کیا کس کا کیا سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے؟ یہ کون لوگ ہیں, کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت کروا رہی ہے جی. حکومت کروا رہی ہے. کس کو الزام دیا جائے اس کا؟ آپ کسے دے سکتے ہیں, کسے کون کہہ سکتا ہے جی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت مخلص ہو اور صحیح طریقے سے اس کا علاج حل سوچے تو یہ مسئلے ختم ہو سکتے ہیں؟ ضرور, اگر حکومت سوچے تو ہے نا جی. کہاں سے تعلق ہے آپ کا یار؟ بنی چوک سے. کراچی کے بارے میں کیا مجھے معلوم, بنی چوک کا کیا حساب کتاب ہے؟ کراچی میں کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یار؟ کراچی کے تعلق سے یہ حالات ہے جی, کراچی والے جون سے نا جی اس ٹائم مختلف علاقوں میں آ رہے ہیں. لاہور ہو گیا, چکوال ہو گیا, اسنابلال ہو گیا. حالات میرے بھائی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پوری دنیا واپس تو آئے گی نا. اس وجہ سے یہ ہے کہ نا حالات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ادھر کے ہنگامے بہت ہو رہے ہیں. کون یہ حالات ٹھیک کرے گا؟ اتنے حالات تو کبھی بھی برے نہیں تھے. کون کرے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن جون سا کر رہا ہے اس کو اللہ میاں ہدایت دے. تو جن کے لیے وہ کر رہا ہے تو ان کو بھی اللہ میاں ہدایت دے. جی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن سلسلے جو کراچی میں ہمارے بھائی نے کہا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہاں پر پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی میں سے بہت سے لوگ مائیگریٹ ہو کر کے لاہور, پنجاب, اس میں اسلام آباد ہے, راول پنڈی اور دیگر شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا ہمارا شہر تھا جو کہ بیک بون تھی, جو معاشی ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی, جو ہب تھا ایک ٹریڈ کا, بزنس کا, اور جو خاص کر کے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے. سوچا کہ وہاں پہ لوگ آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, لوگ بچوں کو اسکول بھیج نہیں سک رہے, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ جا نہیں سکتے. تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت وہ پیرالائز کر دیا گیا نا سٹی کو, اور وہ تمام لوگ اب موو کریں. دس از اے ویری الارمنگ سچویشن. آئیے ناظرین آپ کی مزید لوگوں سے یہاں پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
जनाब इधर आ जाए साथ, कहाँ से ताल्लुक है? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। यार कराची में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में क्या कहोगे? गलत हो रहा है जी, ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है। अल्लाह हम लोग मर रहे हैं, क्या क्या मशवरा देते हो? क्या आपके ख्याल में इसका हल क्या है? अगर आपको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाए रहमान मलिक साहब की जगह, नहीं सही बात मैं कह रहा हूँ, तो क्या क्या इलाज करोगे? क्या अगर तुम्हें एक शहर दिया जाए इसमें ये हालात हो रहे हो और आपके पास पूरे इख्तियारात हैं, फौज भी लाने के, रेंजर्स का भी, एफसी का भी इस्तेमाल है, पुलिस का भी, काबू कर सकोगे? क्या करोगे? जाहिर बात है, जब सब कुछ अपने हाथ में है तो काबू तो करना चाहिए। फिर मलिक साहब क्यों नहीं काबू कर सक रहे? अरे मसलन ये कोई खुद करवा रहे हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं। फिर बेसिकली हुकूमत खुद ये पंगे कर रही है बाकी इशू से अपना जो है सारा का सारा सिलसिला डाइवर्ट करने के लिए। जी बेशक सही कह रहे हैं। नाज़रीन ये एक अलग अब एक सिलसिला, ये भी लोग ये भी सोचते हैं कि गालिबन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत की, क्योंकि उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जनाब गालिबन इसके पीछे सिंध के मिनिस्टर्स हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से, वो इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। और इसलिए भी किया जा रहा है कि गालिबन शायद मेन इशू से, जो मेन करप्शन या बाकी दीगर इशूज हैं, उससे डाइवर्ट की जाए टेंशन और इस तरफ आवाम को लगा दिया जाए। एनीवे जी, विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के बहुत से मसलों में से कुछ मसले जो आज से कुछ अर्सा पहले हम सुनते थे कि जी बिजली नहीं है तो क्या एसी की बात की जाती थी, गैस की लोड शेडिंग हो जाएगी जी सर्दियों में आने वाली, फिर पता चलता था कि जनाब पेट्रोल की कभी किल्लत होगी, कभी महंगाई तो खैर एक है, इस किस्म के मसाइल नजर आते थे। लेकिन अचानक फिर एक पता चला जी वेव ऑफ टेररिज्म कह लें या लोकल पार्टीज के आपस में हंगामे, लड़ाई झगड़े, एट द एंड ऑफ द डे 1450 बंदा अब तक कराची में हलाक हो चुका है। बात हम कर रहे थे आम इस्लामाबाद की उस मार्केट से जो कि कराची कंपनी कहलाती है, और लोगों के तासुरात क्या है, मुख्तलिफ किस्म की राय। आज के प्रोग्राम का मकसद ये कि आप तक फीडबैक पहुंचे, आप तक एग्जैक्टली वो फीडबैक पहुंचे कि लोग सोचते क्या हैं, और फिर ये जो हमारे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं टॉप पे बैठे हैं वो आवाम की राय को समझें, क्योंकि अभी तक उनके बकौल तो कोई ख्वाब देखते हैं, कोई हजरत जो हैं वो बैठ करके ये फैसला करते हैं कि जी गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स को मरवा रही हैं और बीवियां अपने मियों को, इसमें और कोई चक्कर नहीं। और अचानक एक बयान आता है कि इसमें जी इजरायली असला मिल गया तो गालिबन बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है। लेकिन जिस किस्म की फीडबैक मिल रही है आपको हर एज, हर ग्रुप के तबके से, और हम बात करें आपको आगे मजीद लेकर के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम टेलीविजन से यहाँ प्रोग्राम पे शामिल। मुझे बताइए कराची में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि हो क्या रहा है? तो ये तो जुल्म ही हो रहा है ना, इसमें बारे में सोचने वाली तो बात है ही नहीं इसमें कोई भी। तो आप क्या समझते हैं इसमें कौन सी ताकतें मुलव्वस हैं, ये कौन सी कुव्वतें सबको चीज को प्रमोट कर रही हैं, फरोग दे रही हैं? अब इसमें मैं क्या आपको बता सकता हूँ कौन सी ताकतें इसमें, आप खुद ही सोच सकते हैं, खुद ही जाने आप इसमें कौन हो सकता है। हमारे मुल्क में ही है सब कुछ हो रहा, हमारे मुल्क के लोग हैं, जो मारे हैं वो भी हमारे मुल्क के हैं मुसलमान, और जो मार हैं वो भी हमारे मुल्क के हैं, वो भी मुसलमान हैं। अब इसमें ताकत कौन सी होती है? पूरे किस्से में पॉलिटिकल विल नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो सियासी वो चीज नहीं अभी तक इसका हल निकाला जाए। ठीक भाई। हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। लोकल हो, यहाँ से हो? कहाँ से ताल्लुक है, कौन सा इलाका है? सरगोदा। गोरडे से? सरगोदा से। अच्छा, ये मुझे बताओ कि जो कराची में हो रहा है इसके बारे में पता है? टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो? इसमें हंसने की बात नहीं है, बड़ा सीरियस मसला है मेरे भाई। ये मुझे बताओ कि ये क्या कहोगे इसके बारे में, क्या समझते हो कि कौन ये करवा रहा है, कौन कर रहा है, और इसका हल क्या है? ये गलत हो रहा है सब, इसका हल उस कराची का जो वजीर आला है उसको निकालना चाहिए, कोई ना कोई वजीर आला को फारिग कर देना चाहिए। फौज आनी चाहिए कराची में। हाँ जहरी बात। समझते हो कि फौज कंट्रोल कर लेगी ये सारा सिलसिला? नहीं, ये नहीं कर सकती, ये करवाने वाले खुद है, फौज कैसे कंट्रोल करेगी? ये भी इतना कुछ नहीं होता, इतना कुछ नहीं कंट्रोल कर सके तो फौज कैसे करेगी? आप समझते हैं कि फौज के बस से भी बाहर है, फिर ये ऐसे ही चलना चाहिए सिलसिला सारा? नहीं, ये अगर कोई चाहे रोकना तो रोक सकता है। कौन चाहेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग मैं अभी ये प्रोग्राम बड़ा अवामी हम कर रहे हैं, नॉर्मली हम स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। आज का मकसद ये है कि जनाब लोगों के साथ तासुरात देंगे जी हुकूमत अगर फेल की तो लोग क्या सोचते हैं। हम इल्जाम तो फौरन लगाते हैं जी फेल हो गए, वो फेल हो गए तो अगर मैं मुझे वज़ीर आला बनाया जाए या मुझे इंटीरियर मिनिस्टर बनाया तो मैं क्या करूंगा? क्या मशवरा देना ताकि कोई प्रोग्राम जब आपका टीवी में देखा जाएगा तो आगे बात चलेगी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी लोकल हैं यहाँ के? जी इधर के ही हैं। कराची में जो कुछ मेरे भाई हो रहा है, आज प्रोग्राम इसी पे कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है और क्या इसका हल है? ये जब तक जरदारी साहब हैं, ये पीपी की हुकूमत है, उतनी देर तक यही मसला रहेगा। बेसिकली सारे का सारा रोला जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करवा रही है। ये सारा है हुकूमत ही नाकाम है ना। क्या किया इन्होंने 5 सालों में? रोटी कपड़ा मकान का इन्होंने मंशूर रखा। तो 1967 से ये नारा चल रहा है मेरे भाई। चल रहा है तो देखे ना, 3-4 साल होने वाले हैं। क्या इन्होंने किया है अवाम के लिए? क्या किया है इन्होंने? बिजली महंगी, गैस नहीं है, कोई चीज नहीं है, हर दुनिया भूखी मर रही है, वो ऐश से बैठे हुए हैं, उनको क्या है? तो कराची में ये खुद हुकूमत करवा रही है। इससे तो बेहतर मुशर्रफ ही था, या अल्लाह करे इमरान खान आ जाए,
बस इमरान खान ही है वह जो हमारे मुल्क को संवार सके। आप क्या समझते जी, इमरान खान सही आदमी है? जी इमरान खान से। अच्छा, खान साहब से जब भी बात होती है वो कहते हैं जी बड़ी मेरी सपोर्ट होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन वोटें मुझे नहीं पलती। गालिबन जो हमारा यहाँ का जो एक निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें जो प्रोसीजर्स हैं इलेक्शन में लड़ने के, वो बड़े कदरे मुख्तलिफ हैं। अगर तो यहाँ पे अमेरिकन टाइप सिस्टम होता कि एक शख्सियत को वोट देते तो फिर खान साहब के काफी चांसेस थे, लेकिन इस सूरत में आई डोंट नो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कराची के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या देखते हो रात को जब टीवी ऑन करते हो, ये जब देखते हो कि बच्चे रो रहे हैं, बीवियां लोगों की रो रही हैं, आधे लोग घर पहुंचे नहीं और सारे सिलसिले हो गए, तो क्या लगता है यार? रोंडे खड़े हो जाते हैं यार देख के, क्या हो क्या रहा है। इंसानियत नाम की चीज ही खत्म हो गई है। इस्लाम नाम है हमारा, इंसानियत हमारी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतने दरिंदे हो गए, खून के प्यासे हो गए, ये नहीं सोच रहे हैं कि कल उन्होंने भी मरना है, कहीं उन्होंने भी कहीं जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कोई इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ना टॉप लेवल में, ना हमारी पॉलिटिक्स में, ना हमारे प्रेसिडेंट, कोई इस बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करवा रहे हैं, और हम आपस में मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे को खत्म करके क्या फायदा होगा। अच्छा, आप समझते हो कि यार ये सारे के सारे जो मसले मसाले, ठीक है, ये हर एक प्रॉब्लम का एक हल है, इस मसले का भी कोई ना कोई हल होगा, कोई सियासी हल होगा, कहीं पे डंडा सर्विस करनी हो वो कर लेंगे, लेकिन आप क्या समझते हो कि क्या इसका व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, इसका हल अगर अमन करना हो कराची में तो क्या कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जो प्रॉब्लम्स है सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, आपस में खाली अपने आप को एक दूसरे से ऊपर करने की रीजन है। एक दूसरे को अगर मिला के चलें वो ज्यादा बेहतर है, ना कि एक दूसरे को खत्म करके मार के चलें। आई थिंक अभी हम कोशिश करेंगे नाज़रीन, और भी जैसा कि मैंने बात की, कराची में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, हर जात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। कराची एक ऐसा शहर है जी जिसके बारे में कल भी पता है कि 2 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की है, 2.25 करोड़ की है, क्योंकि पाकिस्तान की हमें नहीं पता कि 16 या 18 या 19, लेकिन कराची की बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि वहां पर हर शख्स जो भी आज नौकरी की तलाश में गया, कराची वो खूबसूरत शहर था, वो बेहतरीन शहर था जिसने उसको जज्ब किया और उसको कारोबार दिया और उसको भूखा नहीं मरने दिया, उसको खुराक दी, उसको सेटल किया, उसको एस्टैब्लिश किया। वो शहर आज हमसे डिमांड कर रहा है, हमसे मांग रहा है, कराची पुकार रहा है पूरे पाकिस्तान को उस अमन के लिए, क्योंकि वो शहर जिसने सबको दिया है, आज उसी के हम दुश्मन बने बैठे हैं। नाज़रीन, आप अस्सलाम वालेकुम भाई, आप क्या करते हो? स्टूडेंट हो? जी सर, मैं स्टूडेंट। यार ये जो कहाँ से ताल्लुक है आपका? सर मेरा ताल्लुक जिला मानसरा हजारा से हो। मुझे ये बताओ, हजारा के बड़े लोग हैं, कराची में बड़े सिलसिले हैं, मुझे आप ये बताओ कि कराची में जो कुछ हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं आज, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आपको कहा जाए कि भैया इसका हल निकालो, तो इसका क्या हल निकालोगे? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपने मफाद की खातिर हुकूमत में आती है और अपनी मफाद की खातिर हुकूमत से अलग होती है, जैसे ही जब उसका अपना मफाद ख़त्म हो जाता है तो वो टारगेट किलिंग शुरू कर देती है, ठीक है, और वो एक बहाना बना दी जाती है और उसके बाद उसको दोबारा वो आने के लिए कोशिश करता है। अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से टेलीफोन खिताब करता है कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब तक MQM को जो है उनने बत्ताखोरी का सिस्टम शुरू किया है लोगों के टारगेट किलिंग में, मैं कहता हूँ MQM मुलव्वस है। आपको मैं इसकी इस तरह, वहाँ पे 3 बड़ी जमातों का आता है, ANP है, MQM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। MQM वाले कहते हैं जी बंदे तो हमारे मर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग बंदों को पिन पॉइंट करके मारा जा रहा है, तो उस पर तो वो इल्जाम लगाते हैं सीधा सीधा पीपल्स पार्टी के ऊपर या ANP के ऊपर। ये वही बात है कि चोर मचाए शोर। MQM को जब भी वो अलग होते हैं हुकूमत से तो वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा दोबारा जो है हमारा कितना बड़ा रोल है, वो अपने आप को मनाने के लिए लोगों को जो है वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, खौफ और राज फैलाया जा रहा है। इसी तरीके से मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ MQM, जो शायद सैयद हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी है, जो भी है, उनका भी यही काम है कि अपने मफाद की खातिर आम लोग। तो आप बेसिकली समझते हैं कि 3 सियासी जमातें हैं जो आपस में बंदे मरवा रही हैं और कोई बार का चक्कर नहीं है और कोई रौला नहीं है, ये खुद सेटल हो जाएंगी तो सिलसिला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है। नाज़रीन, ये भाई का कहना ये है कि जनाब ये 3 सियासी जमातें, ANP है, MQM है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद लड़ रहे हैं, खुद ये प्रॉब्लम का बायस बने हुए हैं, खुद ये इंसान बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो चीजें सेटल हो जाएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ती हैं? ये मुझे बताएं कि कराची में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हालात बने हुए हैं, इसमें किसको इल्जाम देना चाहिए और इसका क्या हल होना चाहिए? इसमें तो गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और फिर इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट खुद ही करे, टेररिज्म खत्म हो, पीसफुल कंट्री हो, पीसफुल पाकिस्तान पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड में पीसफुल ऐसा कर दे, लेकिन अभी नहीं होता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी करें, सही करें। ये गवर्नमेंट क्या करे? मतलब इस मौके पे वो कहते हैं जनाब कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है कि जस्ट एक शॉर्ट ब्रेक है जी। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे और भी लोगों से जो खास करके यहाँ के ताजिर हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और जो ओनर है यहाँ के शॉप्स के, उनसे भी आपकी बात कराई जाएगी। जस्ट एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉटलाइन और मैं मौजूद इस वक्त कराची कंपनी इस्लामाबाद में और प्रोग्राम हमारा जारी है।
آئیے مزید کچھ تاجروں سے آپ کی بات کراتے ہیں کراچی کے حالات کے حوالے سے. السلام علیکم. آپ کا نام کیا جناب؟ غلام دستگیر ہے. غلام صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اخباریں پڑھتے ہوں گے، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے، جب گھر جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے نا، دل دکھتا ہے. دکھتا ہے جی، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں ادھر، گھر میں ماتم ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو بلکہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کٹ رہے ہیں ادھر. وہ حکومت ابھی کچھ بھی نہیں کر سکی، وہ کتنی دیر سے یہ ہو رہا ہے کام. یہ اچھا، یہ جو حکومت کا سارا مسئلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی حکومت یہ کرے، حکومت وہ کرے کہ جی حکومت رٹ قائم کرے. اپنی رٹ ہی ہے نا جی، رٹ قائم نہیں ہو رہی تو یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں نا. پہلے ہم کہتے تھے سوات میں مسئلہ ہے یا وزیرستان میں یا آگے پیچھے. آپ تو کراچی تو شہر ہے آپ کا، سب سے بڑا شہر ہے. حکومت کرے تو کرے کیا؟ آپ سب کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا مشورہ دیں گے؟ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو وزیر داخلہ بنایا جائے رحمان ملک صاحب کی جگہ، سارے اختیار دیے تھے، کیا کریں گے آپ ایسا کہ کراچی میں امن آ جائے؟ سختی ہونی چاہیے، کوئی اس میں آپریشن ہونا چاہیے، اور یہی ابھی لاسٹ تو یہی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. کراچی کی تاجر برادری نے، جس کو آپ کو پتا ہے کراچی میں جس طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، دکانوں کے شٹر نیچے کھیتے ہیں، وہاں فائرنگ کی جاتی ہے، پرچیاں لگائی جاتی ہیں کہ جناب آپ 10,000 دیں گے، 20,000 دیں گے، لاکھ دیں گے، 2 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ. بتا مافیا ہے پوری. اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے گھر میں دستی بم پھینکے دے کے فائرنگ کر دی جائے گی آپ پہ. معاشی ہے نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر آپریشن ہو، کوئی حکومت ان کو پکڑے. فوج کے فیور میں کراچی میں فوج آئی جائے، فوج ہو یا ہماری کوئی رینجر ہو یا اس طرح کوئی ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ سختی سے نپٹا جائے؟ سختی سے نپٹنا پڑے گا، ابھی تو اور کوئی چارہ نہیں رہا نا. ہاں جی بھائی، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. اسلامی مہینہ نہیں، اس میں لڑائی جائز بھی نہیں ہے. مسلمان اسلامی مہینوں میں لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے. یہ جو بھی ہے نا غیر ملکی طاقتیں کر رہی ہیں سب. آپ سمجھتے ہو میرے بھائی کہ یہ جو کچھ اس میں جو انوالو ہیں اس پورے کے پورے سلسلے میں، وہ غالباً باہر کے ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ باہر کے کیا، میں نام لے کے بتاتا ہوں، اسرائیلی انڈیا والے اس میں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلحہ دے رہے ہیں، وہ پیسہ دے رہے ہیں، لڑائی کروا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، کیوں نہیں. ایک بندہ ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح یہ ہینڈل ہو رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے. روزانہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لاش کی جاتی ہے، ہر گلی سے جنازہ نکلتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں. ان اسلامی مہینوں میں لڑائی حرام تھی، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہیں جو قتل کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کوئی سخت فیصلہ کرے ان کے خلاف. وہ کہتے ہیں جی سخت فیصلہ کریں گے. کل بھی وسان صاحب نے کہا ہمیں پتہ ہے کون کر رہا ہے. کمیٹی بیٹھا دیتے، کمیٹی بیٹھ جاتی، پھر کھڑی ہی نہیں ہوتی. ان کو اپنی سیٹوں بھی پڑی ہوئی ہے، الیکشن میں پڑے ہوئے ہیں سارے، وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے اپنی. وہ ان لوگوں غریبوں کی فکر نہیں، وہ تو کرسی بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی بچاتے ہیں اپنی. غریب وہاں پہ مر رہا ہے، تاجر پریشان ہے، وہاں پہ عوام پریشان ہے، جن کے ووٹوں سے وہ برسر اقتدار آتے ہیں وہ پریشان ہے. لیکن یہ بس جب ووٹ ہوں گے یہ جائیں گے، تھوڑا سا ان کو جس طرح کریں گے ریلیکس کریں گے. یار یہ جب سب کچھ ہی ہوتا ہے، یہ حالات ہوتے ہیں کراچی میں ابھی سے نہیں ہو رہا، کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. پچھلے سال کوئی 1300 بندہ مرا ہے، ابھی تک 1450 اس مہینے میں تک بندہ مر چکا ہے اس سال میں. اس سے پہلے 700-800 بندہ مرا ہے، پھر 700-800 بندہ مرا ہے. تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ووٹیں پھر ہم انہیں کو دیتے ہیں، پھر ووٹیں ہم انہیں کو دیتے ہیں. انشاءاللہ عوام اس دفعہ جاگ اٹھی ہے، سوچ کے انتخاب کریں گے اپنے سربراہ کا. ووٹ کا بائیکاٹ کر دے، ایک بھی بندہ ووٹ نہ دے. انشاءاللہ ہوگا جی، ہوگا. چلے، بہت شکریہ میرے بھائی، تھینک یو. ناظرین، یہ اپروچ ہے کہ بیسکلی اگین گھوم پھر کے جو بات آ رہی ہے وہ پولیٹیکل ول پہ آتی ہے. جو حکومت اگر چاہے تو سلسلے ٹھیک ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ اگر نہ چاہے تو سلسلے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں جناب، دیکھتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ لالا یہ جو کچھ کراچی کا پہلے جو کر کیا رہے ہیں، بڑی زبردست کڑھائی کر رہے ہیں آپ تو. اچھا تک برادری، مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں کراچی میں تو حالات یہ ہو گئے کہ اب لوگ نہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، نہ دکان کھول سکتے ہیں، نہ اس طرح آرام سے جیسے بیٹھ کر کے آپ کام کریں. کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو شر پسند عناصر ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کراچی کا حل کیا ہے؟ کراچی کا کیا حل ہونا چاہیے؟ مہنگائی اتنی ہے، روزگاری ہے. مہنگائی روزگاری کے علاوہ جی اب تو کوئی زندہ بچ کے گھر آ جائے تو میرے خیال میں وہ بہت بڑی وہاں پہ کامیابی سمجھی جاتی ہے. بالکل. کیا مشورہ کیا دیں گے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہونا چاہیے کراچی کا؟ کراچی کو دوبارہ پرامن بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے؟ یہ مجھے نہیں پتا ہے. آپ کو نہیں پتا؟ چلیں جی، ایز لانگ ایز وہ کام کر رہے ہیں، سکون کا کام کر رہے ہیں یہاں پر، اور مسئلے مسائل اس قسم کے نہیں ہیں. لیکن سادے آدمی ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ غالباً ان کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں جانتے. لیکن چلیں آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم، آ جاؤ یار، کراچی کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ آ جاؤ. کیا دیکھتے ہو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ یار تم جوان آدمی ہو، تمہاری عمر کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مار داڑ کی جا رہی ہے، مار دیا جا رہا ہے. کراچی تو وہ شہر تھا جو ہر شخص کو روزگار دیتا تھا، اور آج اس کے حالات کیا ہیں؟ کیا کہو گے؟
बताओ यार, वो तो बताएंगे, उनसे भी पूछूंगा, आप भी बताओ। मैं कुछ नहीं कह सकता सर। कराची के हालात तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? कराची में क्या कुछ हो रहा है? कराची में तो बड़ा कुछ हो रहा है, क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत ही है। क्या हुकूमत का मसला है ना, क्या समझते हो कि क्या ऐसा मसला, इसका हल अगर तुम्हें दिया जाए तो क्या करोगे? फौज को बुलाया जाए, अमन किया जाए, क्या किया जाए? फौज को बुलाया जाए। फौज समझते हो हल है इस चीज का? हाँ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं समझता हूँ कि आई थिंक ये जो कराची के हालात भी है ना, ये सब निशानी, ये सब जो सियासी निशानाबाजी है, ठीक है ना, एक दूसरे की सियासत को गिराने के लिए, मफादात हासिल करने के लिए, अपने मफादात उसको हासिल करने, ये सब कुछ ना अप डाउन कर रहे हैं। और इसमें अमन अब जब तक हल नहीं हो सकता जब तक अवाम कुछ नया ना सोचे। अवाम क्या नया सोचे यार? क्या क्या समझते हो आप, क्या सोचा जाए? अवाम और नया यही सोचेंगे जो टारगेट कर रहे हैं ना, बाकी अवाम में असला उसको भी दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे यही इसका हल है। आप ये समझो कि जो पहले यार इतना असला है भाई, और असला लोगों को दे देंगे तो किस तरह, हम तो कुछ और ही सोचे। जिनके पास नहीं है मार तो वो रहे हैं, जिनके पास असला है वो तो मार रहे हैं। इसका ये इलाज नहीं कि बेसिकली जो है जो असला है उसे खत्म किया जाए, उसे एलिमिनेट किया जाए। वो तो खुद सियासी असला है ना, वो कैसे खत्म हो सकता है? वो तो हम लोगों का खुद ही दिया हुआ है, वोटिंग करते हैं तो असला मिलता है। अगर आपको रहमान मलिक साहब की जगह लगा दिया जाए इंटीरियर मिनिस्टर, ऐसा क्या करोगे कराची ठीक करना हो? अगर एक हफ्ते के अंदर कराची को इंटीरियर मिनिस्टर जो होता है ना, उसको इस बेस पे बनाया जाता है कि मुल्क के सारे हालात जो है ना वो उसी के हाथ में होते हैं। अगर वो कहते हैं मुझे और भी बड़े मसले हैं कराची के अलावा, उनको अपने घर के मसले होंगे, यही हो सकता है। हमें भी अपने घर, आजम साहब कहते हैं सुबाई मसला है, ये सुबाई मसला है, सुबह जो कहेगा वो करना चाहिए। सर जी सारा कुछ ना सुबह करे, जो भी करे, लेकिन सारी ये मिली भगत है, करना सबको चाहिए, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, MQM हो, या जो भी हो, ठीक है ना, सब देखे। हम भी रोज देखते हैं, न्यूज पर देखते हैं, इधर उधर और देखते हैं, फिर ना मुख्तलिफ किस्म मज़ाहिया प्रोग्राम है, मसालेदार हैं, कड़ाकेदार हैं, लेकिन उसमें एक प्रोग्राम में माशाल्लाह देखता हूँ कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखा, तो शबीर हर किस्म के प्रोग्राम दिखा सकता है, लेकिन एक कराची की तरफ नहीं दिखा सकता। क्या उसमें इस चीज की सेंस नहीं है? अगर मैं आम और नॉर्मल इंसान होकर मैं ये सोच रख सकता हूँ, तो क्या वो नहीं सोच सकता? जिसने भी कल के मुझे बता रहे थे कि जिसने भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है ना, उसकी भी बोरी से मिली है लाश। सर क्या करे वो गरीब जर्नलिस्ट बेचारा? वही कह रहा हूँ, उसके पास असला नहीं है, उसके पास असला है, मेरे पास असला है जो मुझे मारने का, कम से कम मैं अपना डिफेंस तो। अच्छा, तुम ये समझते हो कि इसको बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर्स में 4-5 नाम है, मिर्जा साहब का नाम लिया जाता है, बड़ा कुल्लम कुल्ला, ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? कंफर्म बात है। लियारी गैंग का जो कहा जा रहा है, वो तो कैसे कहा जाए, शिकागो और जापान के और चाइना के क्या गैंग हो गए जो वहां पर है? ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि ये सारा जो भी हो रहा है मिली भगत है, सियासत चमकाई जा रही है, कोई एक दूसरे को अप डाउन करने के लिए, सारी इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब सियासी बिना पर हो रहा है, अपने मुफाद हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी ना आपको पता है ना मुझे पता है हमारी जिंदगी कितनी है। थैंक यू यार, बड़ी सही बात कीजिए मेरे भाई ने। उसने ये कहा कि हमें ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी कितनी है और कब क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, कुछ मालूम नहीं, और कराची में टोटल सियासी मफादात। तो प्राइमरीली अभी तक जो बात समझ में आ रही है, जो जजमेंट समझ में आ रही है, वो सियासी मफादात की है। आइए, अस्सलाम वालेकुम जनाब, लाला हम टेलीविजन से हैं, वक्त न्यूज़ पे बात करें कराची के हालात के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है वहां पर और क्या हल होगा इसका? कराची के हालात ये MQ में भाई, और क्या है? आपका सिंध से ताल्लुक है? बिल्कुल सिंध से ताल्लुक है मेरा। ये MQ में MQ वाले करा रहे हैं, ये काले हैं। हम कभी ये हुआ है कि जिस लोगों ने पनाह दी, जिन लोगों को, किस तरह वो लोग आए थे हमारी सिंध में, किस तरह आएगा उनको तो मतलब वो हमें पता है कि हमारे बड़े बताते हैं जिस तरह। आज वो कह रहे हैं हमारे को सूबा चाहिए, और मुझे पता है सबसे ज्यादा पंजाब का या सिंध का थोड़ा बहुत इख्तलाफात होता था। कभी देखा है आपने कभी कि सिंध के बंदे किसी ने किसी पंजाब के बंदे को कत्ल कर दिया है, पंजाब के बंदे ने किसी सिंध को चलते हुए बंदे को कत्ल कर दिया? ये तो यही लोग है। हाँ, लड़ाइयाँ होती थी जिनके साथ दुश्मनियाँ होती थी, ये होता था। कब मतलब ये इस तरह नहीं होता था कि रास्ते चले बंदे को कत्ल कर दिया। या वही लोग हैं, और कौन लोग हैं? या इन्होंने हिंदुस्तान में नहीं रहे तो यहाँ आके क्या रहेंगे? इन्होंने आके हमारे मुल्क को खराब किया है, सीधी बात यही। बेसिकली समझते हैं कि सारे के सारे ये महाजर का क्रिएट किया, यही है, बिल्कुल यही है। जब से ये बनी है, तंजीम बनी है, MQ बनी है, या ये लोग बने, उनसे उसी टाइम से कराची के हालात खराब हैं। हम देख लें 86 से ले गए, इन्होंने पठानों के साथ झगड़ा किया, इन्होंने पंजाबियों के साथ झगड़ा किया, इन्होंने सिंधियों के साथ झगड़ा किया, सारे एक ही हैं। इसका अगर इसका हल निकालना, आप देखें जी, अब तो चलो सब कौमियतें वहां पर आबाद है, पठान है, सिंधी हैं, पंजाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हर इलाके के लोग हैं वहाँ पे। आपको पता है इसका हल क्या है? हल ये है कि हमारी वो आर्मी है, वह हमें भी इजाजत स्ट्रेट इस मामले में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको कुछ और बाजार की तरफ लेकर के चलेंगे, कुछ और लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, कराची कंपनी इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद में आवाम से बात करें कि कराची में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह क्या है और फिर इसका हल क्या है। मेजॉरिटी का कहना यह है कि जनाब कराची में जो कुछ आज हो रहा है, जो कि मसले मसाइल हैं, उसकी प्राइमरी वजह सियासी है और ये क्योंकि सियासी जमातें हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये आपस में लड़ाई झगड़े को तूल दे करके और इसकी वजह से इसकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। अभी हम आपकी कुछ बात कराते हैं कुछ लोगों से। जी कैसे आप खैर से मुझे बताया रहा कि कराची में जो कुछ हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं आज, आप क्या समझते हैं इसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या मसले का हल क्या होना चाहिए? मुझको इतना मालूम नहीं है भाईजान, आप बात सच्ची कर रहा हूँ। हम बोला पाकिस्तान खुशी से हो जाए, पाकिस्तान में कोई खराबी गड़बड़ नहीं हो जाए, अमन कायम हो कराची में, अमन हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ अमन कायम हो जाए। मुसलमान आप ये समझते हैं कि अगर अमन कायम करना हो कराची में, इसके लिए अगर फौज को भी तलब करना पड़े, फौज को भी तो करना चाहिए, जैसे सवात में ऑपरेशन हुआ या बाकी इलाकों में, कराची में भी होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान का जुल्म नहीं होना चाहिए। मुसलमान अपनी को अल्लाह हद दे उसको देगा, खुदा पाक हद देगा, मोहब्बत देगा। सियासी हल निकालना चाहिए इसका, सियासी मोहब्बत साथ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब सियासी हल इसका निकलना चाहिए और पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और लोगों को खुद भी थोड़ा सा इसमें शामिल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? बिलावल नाम है मेरा। यार ये बताओ, जो कराची में जो कुछ हो रहा है, आप टेलीविजन भी देखते हो, अखबार भी पढ़ते हो, तो इसमें क्या समझते हो, उसका क्या हल होना चाहिए? बेसिकली ये तो सब कुछ पहले से जो मेरी जहाँ के लगता है, मुझे सारा कुछ प्री प्लान है, क्योंकि एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि आपको पता होता है कि ये काम हो रहा है, तो उसके लिए अगर कोई सब कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं है कि इतनी देर से ये काम हो रहा है, तो कोई इसकी मेजर्स तो होने चाहिए। इस काम इतनी देर से हो रहा है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप एजेंसीज को इतने पैसे देती हैं, इतना उनका मतलब है। भाई मेरे कहने का मकसद ये कि प्राइमरीली पॉलिटिकल विल नहीं है इस पूरे के पूरे मकसद के पीछे। विल नहीं है, असल में हर कोई अपने अपने उसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है और कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि आम लोग मर रहे हैं। जब तक मेरे ख्याल में अगर उनकी फैमिली में से कोई हो तो उनको फिर ज्यादा अच्छा लगेगा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। आप समझते हैं कि जब तक हमारे सर पे खुद नहीं पड़ेगी, हमें उस चीज की पेन और तकलीफ नहीं होगी? यहाँ पे हमारे एक भाई थे, वो कहते हैं यार हम तो अपना कारोबार करते हैं, हमें तो पता नहीं कराची में क्या हो रहा है, ना वो अखबार पढ़ते थे ना वो टीवी देखते थे। उनको किसी ने बताया था कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है ना वो हमारे प्रेसिडेंट है। बेसिकली यही है कि अब मतलब हम लोग इतने, इसमें यार हमारी भी गलती है, छोड़ दो हुकूमत को सारा कुछ। आप समझते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ द सिस्टम, हम लोग का भी कसूर है यार इसमें। हाँ, बेसिकली हम लोग मतलब अपने कामों में इतना सब कुछ हो चुके हैं कि वी जस्ट डू नॉट फील इट के कुछ हो रहा है। बस हमें ये कंसर्न है कि यार हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे किसी जानने वाले के साथ नहीं हो रहा, तो इट्स ऑल ओके। मतलब हमें किसी दूसरे का दुख दर्द की फीलिंग अब रही नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि हम सेफ रहें, बाकी बेशक कुछ हो ना। तो इसमें इसके लिए ये है कि आप एक किस्म का, हमें कराची में अगर इतना कुछ हो रहा है और हम कहते हैं कि हमारा वो एक किस्म का इंडस्ट्रियल हब है और सारा कराची में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एटलीस्ट हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें भी कोई मूवमेंट्स और मासेस वगैरह ऐसी कोई होनी चाहिए, सेमिनार्स वगैरह जो इस चीज को अवेयरनेस करें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, दादा आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद खालिद मेरा नाम। खालिद साहब किधर से ताल्लुक है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का रहने वाला हूँ जी, इस्लामाबाद में सर्विस करता हूँ। मुझे ये बताएं कि जो कराची में जो कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है और इसका हल क्या होना चाहिए? ये देखिए जी, ये जो कराची में ये बड़े अफसोसनाक हालात पैदा हुए हैं। बहुत अफसोस है, हमारा इतना प्यारा मुल्क है जिसका पाकिस्तान है, कितनी कुर्बानियां देकर हमने हासिल की है। तो इसका हाल तो देखें, ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जब इनको अपनी किसी भी किस्म का कोई मसला बनता है, हुकूमत जा रही है तो ये खुद हल निकाल लेते हैं, हुकूमत बन रही है तो ये खुद हल निकालते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो इन बड़ी सियासी जमातों को इसका हल निकालना चाहिए बैठकर। जब तक कोई इसका सद्देबाब अच्छा इसका हल नहीं निकल जाता, इसकी आउटपुट नहीं निकलती, उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में और कोई काम इनको नहीं करना चाहिए जब तक ये इसका हल नहीं निकलता। आप समझते हैं कि फौज हल है या सियासी मफाहमत जो है वो हल है? नहीं, अगर फौज आ जाए तो इसमें भी कोई मतलब हर्ज नहीं है, लेकिन सियासी हल भी अगर अच्छे तरीके से देखें, इस टाइम 3 बड़ी जमातें हैं, ANP है, MQM है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, इनका कराची में बहुत अमल दखल है। अगर इसके सिलसिले में मुस्लिम लीग, किसी भी मुस्लिम लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे शेख रशीद जैसी वो वाली मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई और सियासी लोग, अगर इन सब को मिलकर भी कोई इसका हल निकाला जाए तो वो फौज से भी बेहतर है। बेसिकली आप इस फेवर में हैं कि इसका सियासी हल निकलना जरूरी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, जनाब का क्या नाम है आपका? असलम मसीह नाम है।
रसी साहब ये बताएं कि कराची में जो कुछ हो रहा है, कराची में हमेशा बात करता हूँ, कराची वो शहर है जिसने इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के किसी भी तबके, किसी भी नस्ल, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले के लोगों की बात करें हम, या फिर हम बात करें कि कराची ने किसी भी मजहब, किसी भी मैं कहता हूँ जी माइनॉरिटी से भी ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसको पाला है, उसको सेटल किया है, उसको अपनी आगोश में ले लिया है। आज कराची हमें ये कह रहा है, पुकार रहा है कि कराची की जो खून की होली खेली जा रही है, जो लाशों की बारिश हो जा रही है, आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका, किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और इसका अगर हल है तो फिर क्या हल है जनाब? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने पहले कहा कि हर कम्युनिटी वहाँ पर बसती है, दुनिया की तकरीबन हर कौम। कराची को आप माँ कह सकते हैं कि कराची जो है ये माँ है, और कराची ने हर एक को पाला है। अगर उसमें कोई आदमी ये कहे कि ये कराची मेरा है और कराची ये मेरा शहर है और इसमें मैं बसता हूँ और मेरी इसमें हुक्मरानी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची सब कौमों का है, जितनी भी कौमें वहाँ बसती हैं, वो सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, पठान हैं। देखिए बहुत से लोग वहाँ पर जाकर अपना रोजगार अपने वहाँ तलाश करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जितने भी बम ब्लास्ट होते थे, मेरी अपनी ओपिनियन है कि जितने भी पेशावर में हो गया ना जी, फिर मैं कहता हूँ कि पेशावर में आज 20 लोग मरे, ये कोई इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं है जितनी दहशतगर्दी कराची में हो रही है। रोजाना की जो है 20, 30, 40, 50, अगर हम एवरेज देखें तो आज कराची में ज्यादा लोगों की डेथ हुई है और शहीद हुए हैं, फौत हुए हैं, जहां बहक हुए हैं, मगर जो पाकिस्तान के जो दूसरे लोग बम ब्लास्ट में उसमें कम हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कराची में अगर किसी तरीके से अमन हो सकता है तो इसमें आर्मी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी, आप जब देख लें, अभी आज देख लें, आज का मैंने टेलीविजन पे देखा, मुख्तलिफ चैनल पर, प्राइवेट पे, कि रहमान मलिक साहब रोजाना जाते हैं वहां पर, रोजाना ये कहते हैं कि 3 दिन में एक्शन कर दिया जाएगा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मगर अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो जी लगातार बयान आ रहे हैं, हमें पता है कौन कर रहा है, हमें पता है कौन कर रहा है और हम कर लेंगे, अब सख्त इक़दाम लिया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। सब समझ हर रोज 150 बंदा मर जाता है और ये सख्ती से कब निपटेंगे? मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि ये कहना शायद यहाँ मुनासिब नहीं है। जो कुत्ती है ना वो चोर से मिली हुई है, वो लोग यहाँ पर ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये सब एक दूसरे ये जो बहुत से लोग हमारे खुद रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं कराची में, और हम खुद यहाँ परेशान हैं कि उनका क्या है, उनसे राब्ते में रहते हैं, भाई ख्याल है वहाँ क्या है, कैसी परेशानियां हैं। मगर वहाँ पर कोई भी, मैं कहता हूँ, गरीब की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम टेलीविजन खोलते हैं तो ये, मैं फिर कहूंगा कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी है वो कराची में हो रही है। ये टारगेट किलिंग्स हैं, ये जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, ये सब लोग वहाँ पर, ये बम ब्लास्ट कोई इतनी बड़ी वो दहशतगर्दी नहीं है। मैं कहता हूं कि इस टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान है या आर्मी है, आर्मी को आगे आना चाहिए, आर्मी को सुनना चाहिए, आर्मी को देखना चाहिए कि इस मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। बेसिकली फौज जो है वो इस मसले का हल है। फौज को आना चाहिए, आर्मी को, क्योंकि रेंजर्स और पुलिस तो फेल हो गई। जब तक उनको ऑर्डर्स ही नहीं दिए, कहा जाता है जिस इलाके में प्रॉब्लम है, मसला है, वहां से रेंजर्स पुलिस फौज को गायब कर दिया जाता है। जब तक ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे वो कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं समझते कि हुकूमत की टोटल ये फेलियर है, नाइली है एट द एंड ऑफ द डे? मसला सारा ये है कि ये कमिटमेंट नहीं है। बिल्कुल 200% ऐसा है कि ये हुकूमत बिल्कुल फेल। देखें, आप रोजाना की बुनियाद पे देख लें, आप रोजाना आपके टेलीविजन आपके बता रहे हैं कि रोजाना हर ब्यूरोक्रेट्स क्या हमारे जितने भी सियासतदान हैं, वो एक नई से नई बात हमें सुना रहे हैं कि ये अभी कल कर लेंगे, और ये कल में जिनके लोग, मैं ये समझता हूँ कि जिनके लोग वहाँ पर मर रहे हैं। ये बताओ कि क्या हो रहा है कराची में? कराची में जो हो रही है ज्यादती हो रही है, और कोई भी ना है, ना जनरल है, ना फौजी है, ना मौलवी है, और इस्लामी मुल्क बनाए और अल्लाह चला रहा है, कोई सियासतदान की जरूरत नहीं। लाला, ये जो मार धाड़ है, ये जो मारा जा रहा है कराची में, ये सारे जो सिलसिले हुए हैं, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि कोई भी जो है ना, अगर मैं आपको हाथ मारता हूँ, आप हाथ काटे, सख्ती से निपटा जाए। हाँ जी, इस्लामी मुल्क उसे कहते हैं। ये सऊदीया का कानून होना चाहिए, रिश्वत सिफारिश खत्म होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे तो पूरे का पूरा माशरा, छोटे लेवल पर भी रिश्वत, गड़बड़, इंसाफ नहीं है, बड़े लेवल पर फिर बड़ा हिसाब किताब है। क्या किया जाए? ये बड़ी पते की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक साहब है हमारे, अगर हम लोगों को रोडों पे आना चाहिए, भूख हड़ताल करनी चाहिए, किसी सियासतदान को सलाम नहीं करना चाहिए। अब आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे जो मसले हैं वो ये हैं जो आपने सुने, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये लोगों के इश्यूज हैं, ये लोगों के
जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और मेरे ख्याल में इसमें अब हुकूमत, हम क्या कहें जी, हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, हुकूमत क्या करे? हुकूमत अगर है, हुकूमत अगर एग्जिस्ट करती है, हुकूमत की अगर अपनी कोई रिट है तो कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आती। लेकिन अवाम ये सोचते हैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, दे डोंट केयर कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन जो भी है वो करे ये कि इन लोगों का सोचे, इस पाकिस्तान का सोचे। और कराची की हम बात करते हैं तो कराची का हल फौज में है या सियासी मसाइलत में, ये हम फैसला नहीं करेंगे, फैसला तो वो करेंगे जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुदा हाफिज़।